कच्चे आम बड़ी देर से नहीं खाए, प्लीज जाकर मेरे लिए ले आइए ना। अब तो ट्रेन भी रुक गई। आप जैसा बोलती हैं लोग वैसे ही करते हैं ना? क्यों? ये देखिए, आपके कच्चे आम के चक्कर में मेरी ट्रेन मिस हो जाती। आप यही चाहती थी ना? भाई साहब पास। जी ये सर अगली फिल्म मुझे लंबी से साइन करनी है। फिल्म सुपर हिट है, आगे बहुत बड़ी राशि देनी पड़ेगी। रुखसार, ये वो जिसके बारे में मैं तुम्हें गोविंद, बता रही मैं किसी से मिली। थी। मैं भी मेरी सामने वाले कमरे में रहने आए हैं। मेरे कंपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसाया। मैं और मेरी सहेली घर से भागे थे। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो मैं भी कल तुम्हें एक सरप्राइज दूँ। अच्छा लग रहा था यही कि आप हमें मिस कर रही थी और हमारा इंतजार किया जा रहा है। चाची से कहिए मिल गई। सच की धरती पे मेरा सपना आ गया। जब से मेरे दिल को तुझ पे मरना आ गया। What's going on? Meera, what the hell are you doing? I need to get to class. I need to get to work. Can we just please stop this fighting? It stopped, Krish. हमारे भी जो था सब स्टॉप किए और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? ओह सॉरी, टाइम है वर्क के लिए, स्टडीज के लिए, सिर्फ मेरे लिए टाइम नहीं है। Krish and Meera fighting again. Listen, मैं यहाँ काम करने आया हूँ, पढ़ाई करने आया हूँ, मस्ती करने नहीं, okay? ओह नाइस, तो अब मैं तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मस्ती हूँ। Listen, Meera, you know I didn't mean that, and those are really expensive shades. So. It's over, Krish. I hate you. I hate you too. Come on, राधा। वहाँ मुझे मीर से शेक्सपियर की लाइफ स्टोरी अकेले सुननी पड़ रही है। तुमने देखा कितनी स्वीट वेडिंग थी। लड़के ने लड़की से वादा किया। मैंने भी अपने आप से एक वादा किया है, उस मिहिर वोरा के साथ मैं कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। बेचारा, इतना भी बोरिंग नहीं है यार। Oh my God, guys, come here. चलो। जानते हो यहाँ के चौथे बेंच पर बैठकर शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट लिखी थी। हाँ यही है।
प्लीज टेल मी कि तेरा रोमियो ऐसा नहीं होगा। Oh, come on. Idiot. क्या? तुमसे नहीं, मुझसे कह रही थी। I'm sorry कि आपको idiot कहा। It's okay. अपने मन में मैंने भी तुम्हें idiot कहा। That's 5 minutes in that direction over there, and then I thought Where's that we my could phone? stop somewhere to have ourselves a nice lunch. We could do like a 3-course, you know, with like a nice tea. That guy stole my phone. Dessert, Really? You know, that kind of Yeah, it's the oldest trick in the book. Bang into somebody and then steal their phone या उनका wallet कहाँ गया वो? Officer, that guy stole my phone. He bumped into me and he stole my phone. For blue shirt. The oldest trick in the book. Come with me. That's what I said. That Hey, guy, you! stop him. Wait! In the blue shirt! In the blue Stop right shirt. there! Stop. Yep, that's him. Sir, did you take your phone? What? Can I see your phone, sir? Please. Yeah, sure. That's. Oh. Oh, yeah, that's not my phone. When we banged into each other, it must have kind of got exchanged. When you purposely bumped into me. So, this is her phone, sir? Yes. Yes, but obviously, when we banged into each other, our phones must have got exchanged, right? So you must be having my phone. Rubbish, you stole my phone. मैं तुम्हारा phone क्यों चुराऊँ? मुझे क्या पता लोग चोरी क्यों करते हैं? Sir, you're gonna have to come with Yeah, me. but you need to check her for my phone. You have the right to remain silent. I don't want to remain silent. I just want Sir, to check. her phone was found on you. You've admitted the crime. Crime? If you don't come quietly, I'm going to have to forcefully arrest you. But why are you arresting? I mean, can you at least listen, dude? Okay, you know what I'm thinking? I'm thinking, why don't we go up now? Let's go to this place quickly, and then we can go up to the. Pick up na. Not mine. What? Happy birthday. अबे कहाँ है तू? It's his phone. Shit. Look, I said I'm sorry. मैंने बेल के पैसे You भी got me arrested. Happy birthday. Thanks. Best birthday ever. Just let me buy you a drink, please. एक दिन मैं घर से भाग गई। मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को एक सबक सिखाऊंगी। मैंने अपना सूटकेस पैक किया और मैं भाग। मैं 6 साल की थी। और जो मेरा सूटकेस था ना, वो एक्चुअली मेरा लंच बॉक्स था। और मैं घर से गार्डन तक भागी। 20 मिनट बाद, जो मेरे लिए लाइक 1 फुल डे था, मैंने सोचा कि अब तक तो मेरे पेरेंट्स सबक सीख गए होंगे, मुझे शायद वापस घर जाना चाहिए। मैं घर वापस गई ये सोच के कि मेरे पेरेंट्स रो रो के मुझे हग करेंगे और प्यार करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया कि बारिश में क्यों खेल रही थी और ये लंच बॉक्स कैसे टूटा। And मीरा? मीरा? Hey, I'm sorry. I'm sorry, Krish. Oh. I'm sorry, Krish. मुझे तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहिए था. I agree. And what is this that you're wearing? Anyways, कहाँ थे तुम? रोहन और चिराग भी तुम्हें ढूंढ रहे थे. Just at a club. Club. You hate clubs. किसके साथ थे? तुम उन्हें नहीं जानती. मैं नहीं जानती. मैं तुम्हारे सारे 4 दोस्तों को जानती हूँ. Anyways, you don't have friends. क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? सिर्फ work and study. Exactly. And that's why you decided that let's just break up with Krish on his birthday. वो एक दिन जब वो खुश होना चाहता है, let's just screw it up for him, right? ऐसा कौन करता है मीरा? You don't know where I was? I was with Radha. Who's Radha? I met her, kind of bumped into each other last night. हमारा एक झगड़ा होता है और तुम किसी भी लड़की के साथ वो किसी भी लड़की नहीं है मीरा, और हमारा झगड़ा नहीं हुआ था. We broke up in front of the whole university. Remember? Just like how you always like to do it. Public तमाशा. तो 2 घंटे में तुम्हें कोई और मिल गई. मुझे कोई मिली नहीं. हो गया. हो क्या
मतलब? Did you sleep with her? Slut! Listen, don't call her a slut, all right? तुम उसे जानती भी नहीं. मैं उसे नहीं तुम्हें slut कह रही हूँ. मैंने सोचा तुम्हारा बर्थडे है, हमें झगड़ा नहीं करना. क्या वो so stupid? Did you sleep with her? I don't tell you because we broke up. Remember? Dude, where were you? किसी लड़की के साथ. And please, she's not कोई ऐसी वैसी लड़की, okay? वो पहली मीटिंग के बाद सारी रात इस slut के साथ बिताती है. But that's okay क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो गया था. And how come कल रात को तुम्हें स्टडी नहीं करना था, काम पे नहीं जाना था, सारा टाइम था उस राधा के लिए? मीरा और क्रिश के बीच में राधा कौन है? चल. हट. Another bloody public तमाशा. At least say sorry. Are you serious? तो सब ब्रेकअप करके गई है, मेकअप करके गई है? Dude, मीरा is like Dawn. उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन. Look at it. हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं. It's like we connect. वो क्या एक ही रात में? Oh please, अब ये मत कहना कि किसी को जानने के लिए टाइम लगता है और फिर मैं कहूँगी नहीं मिहिर, सिर्फ एक ही मुलाकात काफी होगी. Oh come on, Rana, stop being such a drama queen. एक मुलाकात. But I mean it. अगर दो लोगों के बीच में vibe है तो है. Vibe. Yeah. Okay, what is this vibe? It's just... This is a vibe. See, vibe. मेरा vibe सिर्फ मेरे सेल ऑपरेटर से है. उससे ज़्यादा मुझे कोई कोई मैसेज करता ही नहीं है. Oh. ये देखो. Had a great time. फिर मिलेंगे. ठीक. फिर मिलेंगे means thank you, bye bye. फिर नहीं मिलेंगे. Trust me. Not if it ends with a smiley. स्माइली डालने से मैसेज का मतलब चेंज होता है. Duh. Okay. तो मैं कहूँगी yes, definitely see you soon. Don't forget the smiley. You fall back knowing that the person behind you will not let you down. 1, 2, 3. That was very good. Thank you. तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, पर क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? Ow! Wrong answer. Who eats burgers for lunch? के लिए बस इतना समझ लीजिए, 1 से करना है या 11 से, ये खुद ही तय कर लीजिए. वाह वाह. वाह जावेद मियां, वाह. चल जा. वो सूखा हुआ तौलिया सुखाने क्यों आई है? इशारे समझो. मम्मी अबू बाहर गए होंगे, इशारा दे रही हैं. वो ऐसी नहीं. अरे मियाँ वो जैसी भी हो, तुम कैसे हो? मुझे तो शक हो रहा है. सब पुर्जे हो रहे तो ठीक है तुम्हारे? देखो मियाँ, तवा तुम गरम कर रहे हो तो रोटी भी तुम ही सेको, वरना कोई और रोटी खा जाएगा और तो लस्सी भी तरह जाएगा. ओए मम्मी. जावेद भाई, लड़की की माँ. सईद मियाँ जी. गौर फरमा, वो आग ही क्या जो लग के बड़े नहीं, वो नशा ही क्या जो सर पे चढ़े नहीं. वाह वाह. नहीं बनता तब तक कोई सच्चा आशिक जब तक इश्क में उसको 2-4 पड़े नहीं. वाह वाह. क्या बात, क्या बात. ऊपर देखिए. अबे भागो! कितने भाग रहा है तू? ऊपर आ! एक चपेट दूंगी तेनू। और तू क्या जा गई इधर? और सूखा तौलिया सुखा रही थी तो? तेरा दुपट्टा कितने है? चल अंदर चल। यार ये आज़ादी के बाद सिक्के में तस्वीर किसकी आएगी? अभी तो कोई इंग्लिस्तान के वजीर की है ना? अमा मियाँ, ये आज़ादी होती क्या है? अच्छा, हम आज़ाद होके करेंगे क्या? अरे मियाँ, मैं तो आज भी आज़ाद हूँ. मेरी आज़ादी पे किसकी पाबंदी है? आज़ादी दिमाग में होती है मियाँ. ओहो, आज़ादी कितनी भी क्यों ना हो,
लेकिन तू उसके साथ नामुमकिन। अच्छा हुआ मियाँ हमें अब तक आज़ादी नहीं मिली, नहीं तो इंग्लिस्तान चली जाती, फिर मेरी आज़ादी का क्या होता? लो पकड़ो। How much? हाफ आना, हाँ हाफ आना। आना। He and you don't know English? Why do you speak it? I speak him English. We talk you English. How sweet, Alex. He wants to learn English so he can talk to us. Okay, you know English? तुम Yeah. English जानते हैं? जानते हैं। Speak. बोलो. Jack! Begin! Lathi charge! Indian dog! माँ को पटा रहा है, उसकी बेटी को पटा रहा है। Come to my house. My daughter will teach you English. Okay. Thank you, lady. एक बार ऐसी गोरी लड़की मिल जाए ना, ऐसी लगती है दही के ऊपर मलाई। हमारी देसी कुड़ियों की तरह थोड़ी ना। छे, निकम्मी सोच है तेरी। उसके बनाए हर हंसी चेहरे से इश्क करना है, उसके बनाए हर हंसी चेहरे से इश्क करना है। आखिर मरने के बाद कल उसको मूवी तो दिखाना है। वाह वाह। क्या बात? Your eyes are blue, my heart true. I tell you, oh lady, I love you. Alice, Oh, Daddy. Alice. Go now. Daddy, you like my song? Mwah. अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अब्बू, अंग्रेजों के तौर तरीके सीख रहा हूँ अब्बू, और कुछ उनको अपने सिखा रहा हूँ। What's going on? Who's been in your room? अरे भाग यहाँ से वरना। क्या डरते हो अब्बू? वो हमारे देश की ले रहे हैं, मैं उनकी ले रहा हूँ। Who the bloody hell are you? डैडी, Guards, catch this man! आजा पैंदे टगो। Why are you laughing? Get in your room. जाओ मियाँ। कितना सोएगा चाचा? जावेद तेरी बहन ही। आदाब जावेद। आपको कौन नहीं जानता? वैसे ये आपके लिए। शुक्रिया। ओए, माफ कीजिए। मंजित थाले चुप जाओ। जाओ चिति। Which way did he go? किस तरफ गया? कौन? वो इंडियन लड़का जो भाग रहा था। कमाल है जी, तुझसे 6 होके एक हिंदुस्तानी नहीं पकड़ सके। लानत है तुम पर। चलो ढूंढो उसे। हाँ हाँ जाओ। बड़े। दिल में ना सही कदमों में सही जगह तो दी उसने, दिल में ना सही कदमों में सही जगह तो दी उसने। ऐ अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, कहीं से तो शुरुआत की उसने। उफ।
मोहब्बत का मतलब इकरार नहीं होता, सिर्फ किसी को देखना प्यार नहीं होता। यूं तो मिलते हैं रोज मोहब्बतें पैगाम, मोहब्बत है जिंदगी, बार बार नहीं होता। वाह जावेद, जावेद कादरी। अंग्रेज आपका पीछा कर रहे थे और बाबूजी कहते हैं जो अंग्रेजों का दुश्मन वो हमारा दोस्त, इसलिए हमने आपको पनाह दी। अब चलते बनिए जावेद मियां, हम आपके बारे में सब जानते हैं। आपके अब्बू की महान सोच की वजह से आज हमारी मुलाकात हुई। अपने अब्बू को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा। खुदा हाफिज। अरे अरे उधर किधर जा रहे हो? बाबूजी ने देख लिया तो। जो हश्र हुआ है लाखों का, अपना भी वो अंजाम सही। हम पे तो कई इल्जाम लगे, तुझ पर भी कोई इल्जाम सही। वैसे पास से तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर आपको इतने दूर से बुलाना पड़े तो किस नाम से बुलाऊं आपको? आराधना। ओ तेरी। आराधना जी ये बाबूजी। आपकी आवाज को क्या हुआ? जाओ बाबूजी जाओ। भाऊजी, अरे उन्हें आदाब तो कहता जाऊं। आराधना, अगले हफ्ते हमने मोर्चा निकालने का फैसला लिया है। उसी सिलसिले में पार्टी के कुछ लोग दोपहर में आ रहे हैं। सारा इंतजाम कर लेना। हाँ जी। बढ़िया है। मम्मी क्या बिरयानी बनाई है, मजा आ गया। जावेद, तुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है कि नहीं? करना है ना अब्बू। अच्छा, क्या? निकाह। देखो जावेद, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। अरे तुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है कि नहीं? बनना है ना अब्बू। क्या? दूल्हा। अरे नामाकुल, अपने अब्बू को नहीं तो कम से कम अपनी अम्मी को तो उसके बुढ़ापे में कुछ देगा उसे। दूंगा ना अब्बू। क्या? पोते। ये पाँव ऐसे लीजिए जरा। वाह, अब वो हाथ वैसे और ये हाथ जरा सामने लेके। ऐसे? अरे जावेद। अरे माफ। चलाइए। वाह वाह, सामने देखिए। आधा वर्ष। आप हमारे साथ अपना वक्त जाया मत कीजिए, दिल नवाज के पल्लू में आपका ज्यादा फायदा है। बात तो सही है आपकी, पर वो दिलचस्प नहीं है। ले, तो मैं दिलचस्प इसलिए हूँ क्योंकि मैं चुनौती हूँ। जाइए, वो उस साइकिल में कहीं नहीं पहुंच रही और आप हमारे साथ कहीं नहीं पहुंचे। ओह, फिर भी आप 2 बार मुस्कुराए, सिर्फ 2 मुलाकात हुई। देखिए जी, आपने जाके अपनी साइकिल की पाठशाला संभाली है, और वैसे भी हमारे जाने के बाद आप हमें थोड़ी ना याद। तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? गांव में मैंने तुम्हें कई बार देखा है, दिन भर लड़कियों के पीछे भागते रहते हो, निकम्मे कहीं के। निकलो यहां से, कुछ नहीं करोगे तुम। जी वो आजादी की लड़ाई। तुमसे कहा ना, इस पिस्तौल को उठाओ और किसी भी अफसर पर हमला करो। ऑफिसर छोड़ो, इस पिस्तौल को उठाओ और निशाना साधो। जी। ये किसी लड़की का हाथ नहीं है जिसे तुम आसानी से पकड़ सको। निकलो यहां से, निकलो। जी। माना कि मैंने आज तक कभी पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं निकम्मा हूँ हुजूर। कुछ तो काम होगा मेरे लिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले हफ्ते मोर्चा निकल रहा है, आ जाना और अपने निकम्मे दोस्तों को भी ले आना। कुछ नहीं करेंगे, कम से कम हमारी संख्या तो बढ़ेगी। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। सब आएंगे। बेवकूफ कहीं का, ऐसे खुश हो रहा था जैसे घर पर दावत के लिए बुलाया है। 2 लाठियां सर पे पड़ेंगे, दिमाग दिखाने आ जाएगा। वंदे मातरम! वंदे मातरम!
वंदे 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 आ जाओ मियाँ। अरे अशरफ मियाँ, क्या हाल है? वैसे लिखा क्या है इसमें? वंदे 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 वंदे। अब ऐसे चलते ही रहेंगे क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है, चलना सबके साथ। वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मुझे आराधना से मिलना है। उसकी पिछले महीने शादी होगी। तो मुझसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और तुम्हें क्या लगा मैं उसकी शादी तुम जैसे से करवाता? जावेद, बाबूजी ने अपनी पार्टी के एक नंबर से उस हर तरीके से इग्नोर करें तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि it's over. बट बेसिकली मुझे किसी लड़की की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब तक मेरे पास दारू है तब तक मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए। बिकॉज दारू और लड़की दोनों सेम होते हैं। कोई डार्क होती है, कोई लाइट होती है, कोई हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है। एक पियो और चाहिए, ज्यादा पियो सजा चाहिए। ना 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 ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक से कभी काम नहीं चलता। Cheers. अरे यार स्टार्ट हो रहा है, ये पकड़। अब हम प्यारी प्यारी क्यूट सी बातें करेंगे। हमें लगेगा वाह हमारे बीच में कितना अच्छा कनेक्शन है। हम बिल्कुल पुरानी जीन्स की तरह हैं। लेकिन उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा कि अभी अभी मेरा 2 लड़कियों के साथ ब्रेकअप हुआ है। तुम कहोगी "Oh God, मैं तीसरी हूँ।" या तीसरे तुम होगे। Nice. You know what the thing is that this whole thing, it's a vicious cycle. शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में same shit. वही झगड़े, वही लड़ाइयाँ, फिर से किसी नए आदमी के साथ नया कनेक्शन। Cycles. Have a good day. For whatever it's worth,
कल एक आखिरी बार शेक्सपियर फेस्ट पे मिलना प्लीज। किसको मैसेज किया? दादा को? और मीरा को भी। वैसे तू इस निकाह के लिए मान कैसे गया? हाँ यार, जावेद कादरी का निकाह, ये कैसे हुआ? मियाँ जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत की, अब वो तो दोबारा होगी नहीं। सोचा अब्बू की खुशी के लिए कुछ कर लेता हूँ। Friends, Romans, countrymen. You know they say that Shakespeare's written something for every relationship. कि शेक्सपियर ने हर रिश्ते के लिए कुछ लिखा है। In my case, not true. मेरे लिए तो बिल्कुल गलत। मेरे साथ जो हुआ वो शायद शेक्सपियर के साथ भी नहीं हुआ होगा। I guess what I'm trying to say is that मेरी love story, actually love stories, कुछ ज़्यादा ही उलझी हुई। हम दोनों को गलत लोगों से प्यार हो गया। तुम्हें बिना काम के किराए के मकान में रहने वाले से प्यार हो गया। हमें पर्दे पर चलती पिक्चर को सच्चाई समझना। जैसे ही पिक्चर खत्म हुई, पीछे की सीढ़ियों से फिर सड़क। हम दोनों को गलत लोगों से प्यार हो गया। आपको एक आखिरी बार देखना चाहती थी। आखिरी बार? जावेद कादरी का निकाह कैसे नहीं आती? ये सिर्फ अब्बू की खुशी के लिए रहा था। मेरी शादी भी तो वही थी ना। हमें चलना चाहिए। हमारे यहाँ और रहना मुनासिब नहीं है। जिंदगी और शादी मुबारक। मीरा
I think you all know Meera. Facebook fight last week. I told you that's a Facebook guy. Yeah, मैं ही हूँ वो Facebook guy. You're right. Meera, I think हम दोनों के बीच में जो था शायद प्यार था, लेकिन अब हम दोनों जानते हैं कि वो नहीं है। और राधा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मेरे बीच में जो भी कुछ है वो प्यार नहीं है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जिस दिन मेरा और मीरा का ब्रेकअप हुआ, which was my birthday, उसी दिन मैं और राधा मिले। और राधा, प्लीज ये मत पूछना कि कब, कैसे, कहाँ, इतनी जल्दी, because honestly when I don't know when you happen to me. और अगर तुम यहाँ से चली गई जो तुम जा रही थी, मैं तुमसे कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। सुनिए, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ की सारी सीटें रिजर्व। आपने ऐसा क्या किया होगा? तब सबसे चुप रही हैं। आप यहाँ मुझसे मिलने नहीं आए। आपकी तो यहाँ मुझसे मिलनी नहीं है। आपने ऐसा क्या किया होगा जो आप इतनी जल्दबाजी में जा रहे हैं? जावेद कादरी, वल्द सुलेमान कादरी, आपका निकाह मुमताज शेख वल्द शाहनवाज शेख के साथ करार पाया गया है। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? राधा, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कर रहा है नमाकुल? ये हिंदुत्व है। देख जावेद, अगर तुझे इससे निकाह करना है तो पहले मुमताज से करना होगा। अरे तुझे तो 4 बार की इजाजत है। चलिए बाबूजी। मैं 4 बार आराधना से निकाह करूँ। That's exactly why I hate you, Krish Kapoor. Love you too, Radha. रुखसार। गोविंद। पहली बार हम किसी से कैसे, कब, कहाँ, किस लाइफ में मिलते हैं, ये हमें भी नहीं पता। विद्युत बाबा, प्रेरणा जी का कहना है कि आप ही के आशीर्वाद से एलके इंडस्ट्री आज इस मुकाम पर पहुंची है। हमारा आशीर्वाद तो सबके संग। हरिओम। You know what, श्रुति? कल मेरे हस्बैंड प्राइम टाइम टेलीविजन पे इंटरव्यू देने वाले हैं ऑन द रिजर्वेशन इशू। ये रिजर्वेशन का भी आजकल बहुत प्रॉब्लम है। You know, आजकल किसी भी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन के बिना कोई टेबल ही नहीं मिलती। I don't believe तो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? क्या कहा? आ गए हो? लेकिन हो कहाँ? मेरे पीछे। सुनिए, 1 मिनट। आपको कुछ चाहिए? जी चाहिए ना। क्या? यही कि आप मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएं। हेलो हेलो। हस्बैंड बहुत मजाकिया हैं। चलो इधर। प्रेम नाम है मेरा।
प्रेम चोपड़ा, I have to give you a very good news today. हमारी समुराई म्यूजिक कंपनी एलके ग्रुप के साथ मर्ज होने जा रही है। उसके बाद हमारी ये कंपनी इस देश की सबसे बड़ी म्यूजिकल कंपनी हो जाएगी। और मैं इस देश की सबसे बड़ी स्टार। आपकी तारीफ तो मेरी सब करते हैं। कोई कहता है you're hot, कोई कहता है you're cool, but एलके कहते हैं कि you're going to be very big star। तो एलके आपको अपनी फिल्म में ले रहे हैं? Of course, हमारी 6 मीटिंग हो चुकी है। और आप क्या चाहती हैं कि इस फिल्म के बाद आपका पूरी दुनिया में नाम हो जाए? दुनिया में नाम होने से क्या होता है, अपनी कंट्री में नाम होना चाहिए। मैं तो इंडिया में वर्ल्ड फेमस होना चाहती हूँ। बिल्कुल हो जाएंगे आप। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बस यही करते रहना तुम। Only speaking. बुआ ऐसी है, बुआ is like that, बुआ ये है, बुआ वो है। Only Sameer has guts. उसने तो टीवी पे भी बोल दिया बुआ के खिलाफ। He is only the one मर्द of this खानदान। तो मैं मर्द नहीं हूँ? नहीं हो। तो क्या संजना और नम्रता मेरे बाप की औलाद है? 4 perfect pieces। संजना बेटा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं चाची, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे बावर्ची होने से कोई एतराज तो नहीं? I am not a chef. मैं सर्जन बनने वाली हूँ और जब तुम मर जाओगी ना, तुम्हारा पोस्टमार्टम मैं इतनी ही सफाई से करूंगी। Drinks enough for everyone? Good. आ जाओ। पवन बेटा, आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, ठंडा कुछ? No mom, all I want is right here. बिल्कुल अपने बाप पे गया है। चलो। Of course नम्रता बेटी, हम तुम्हारा एल्बम जरूर निकालेंगे। Thank you sir. इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि भजन एल्बम। हाँ। Are you mad? What happened? मैं आइटम गर्ल बनना चाहती हूँ। आइटम गर्ल? लेकिन उसके लिए तो लुक जरा। ये क्या कर रहे? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये कहाँ ले जा रहे हो भाई? आप लोग एलके को प्लीज जल्दी बुला लीजिए। क्या पता एलके का फोन नहीं लग रहा है। इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन एलके के बिना फैमिली फोटो, हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे उनको बाद में डिजिटली ऐड कर देना, ओके? दरअसल बाबा बात ये है कि इस आईपीओ में मैं 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ एलके के भरोसे। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है ना कि एलके की उम्र हो चुकी है और उसके बच्चे निकले एकदम निकम्मे और नकारा। मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल एलके को कुछ हो जाता है, अब बाबा मान लीजिए तो एलके ग्रुप तो डूब जाएगा और उसके साथ मेरा पैसा भी। ये क्या कह रहे हो? एलके का राजयोग अभी शुरू हुआ है। अगले 30 वर्षों तक यमराज एलके की तरफ देखेंगे भी नहीं। रंजीत, तुम्हारे पापा अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? नहीं सुपर साहब, बस आते ही हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। जी क्या हुआ रंजीत, कोई प्रॉब्लम? बंद करो ये खाना पीना, कमीनों। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशर्मो, क्या करते हो? What is wrong with you, you crazy woman? Have you gone mad? Have you gone crazy? निकल जाओ। एक को लात मार के उड़ा दूंगी यहाँ से। हमारे लक्ष्मी का बचपन के दोस्त की मौत हो गई, इसलिए एलके यानी मेरे डैड बहुत अपसेट हैं। ये पार्टी हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारा सारा परिवार आपसे माफी मांगता है। श्रुति जी एलके के दोस्त का नाम क्या था? केएल, कृष्णकांत लबाड़िया। और उनका फ्यूनरल क्या मुंबई में ही होगा? I don't believe this. ऐसे कैसे अचानक? हाँ विद्या, बूढ़ा लुढ़क गया, अपना हिस्सा जल्दी मिलेगा। वाओ, कितने लकी थे दादाजी। He came and went at the same time. हरिओम। रंजीत, तुमने नीचे एलके के निधन की सूचना क्यों छुपाई? और क्या करता, लोगों को अगर पता चल जाए कि बुड्ढा मर गया है तो हमारे शेयर्स कोई नहीं खरीदेगा। इस कठिन परिस्थिति में हमने निर्णय लिया है कि जब तक सारे शेयर्स नहीं बिक जाते, हम किसी को भनक नहीं पड़ने देंगे कि एलके परलोक सिधार गए। बाबा, यहाँ मेरा लक्ष्मी ऑफ हो गया है और आपको भी इन कमीनों की तरह पैसों की पड़ी है। चुप कर। हम सब कंगाल हो जाएंगे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम तो फिर से वो दादा स्टेशन के सामने अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, माला के नाम पे दे दे बाबा करती फिरोगी भीख मंगी। चुप भिखारन। Babes, you too. तुम्हारे नैन में अश्रु शोभा नहीं देते प्रिय। You are my rock star. बाबा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम,
मैंने प्रेरणा को सब समझा दिया है। लेकिन 2 दिनों तक बुड्ढे की लाश को छुपा कर कैसे रखेंगे? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारे सिवा किसी को नहीं पता कि बुड्ढा मर गया। ये वही कन्या है जो एलके के साथ संभोग में व्यस्त थी। जी बाबा, she's the one he was screwing. हरिओम। सब सितारों का खेल है। मंगल की कूटनीति है, साढ़सती का प्रभाव है। 7:30 बजे से तुम्हारी साढ़सती शुरू हो चुकी है। तुम्हारे हाथों में 5 हत्याएं लिखी हैं। 5 मर्डर? इससे पहले तुम कोई और मर्डर करो, हम तुम्हें पुलिस में दे देंगे। अब तुम जेल जाओगी। जेल? पुलिस? जेल? नहीं नहीं, मुझे जेल मत भेजो। नहीं, मुझे जेल मत भेजो। नहीं, मुझे जेल मत भेजो। मुझे जेल मत भेजो। मुझे पुलिस के पास मत भेजो। मुझे पुलिस के पास। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा ओमकारा। मुझे जेल भेजोगे? पुलिस को ये बताओगे कि मैं विष कन्या हूँ। भीम का विष कन्या होने का राज आज यही तक जाएगा। क्यों डोंगी बाबा खा? तूने ही कहा था ना कि मेरे हाथों में 5 मर्डर लिखा। एक तो कर चुकी हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी ने बताया कि मैं विष कन्या हूँ, तुम चारों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उस बुड्ढी की तरह मार डालूंगी। और सुनो, ये राज ही रहना चाहिए। पर्दे में रहने दो। हरिओम। करना क्या है? जो करना था उसी ने कर दिया। अब वो थोड़ी किसी को बोलेगी कि एलके की मृत्यु हो गई है। अरे आराम से, आराम, ठीक से पकड़ो। ठीक से, होटल अरे का ठीक, फायर एग्जिट बहुत छोटा है। मत छोड़ना, आराम से। मैं तो अभी कह रही हूँ, उनके 6 टुकड़े कर देती हूँ। साइड से, साइड से। रिलैक्स, साइड में रखो। नीचे जाके सी दूंगी। हमारा रात इस शमशान के बाहर क्यों बैठे रहते हैं? अबे चैनल सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलते हैं, कोई भी न्यूज़ छोड़ नहीं सकते। अब क्या पता कोई मशहूर हस्ती मर जाए और यहीं आ जाए तो? अबे इडियट, कोई मशहूर हस्ती मरेगी ना, उसके फैमिली वाले उसे इस डाउन मार्केट शमशान में नहीं लेके आएंगे। इट्स नॉट इवन इलेक्ट्रिक यार। वेंकी और अमित का बढ़िया है। मस्त उशिवारा के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बीट पर बैठे हैं। सब टीवी स्टार फिल्म स्टार मर के वहीं जाते हैं। चल मैं सुसु करके आ रहा हूँ। पानी कम पिया कर। नौकर को सिंहासन पर बिठा कर रखा है। ये सब आप लोगों की भूल है। क्या करे, रामू ने बरसों से इस घर में काम किया है। उसने ही तो इन सबको पाल पोस कर बड़ा किया है। वैसे देखा जाए तो रामू काका ही मेरी सास है। अरे सास को छोड़ो, ससुर की सोचो। लाश को कहाँ रखना है? मेरे रूम में रख सकते हैं। ओ प्लीज, पता था ना सुबह तक तुमने लाश का पोस्टमार्टम कर दिया। डैडी ऊपर आइए, just see what's on TV। श्री लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार कल सुबह 12 बजे भोईबाड़ा शमशान घाट में होगा। फ्यूनरल के लिए लाश कहाँ से आएगी? देखो, म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स में गरीब लोग मरते रहते हैं, उन्हीं में से किसी से लाश खरीद लेंगे। हाँ? अरे गरीब तो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेच दे। अरे गरीबी क्यों? अगर आपको कोई 2 करोड़ रुपए देगा तो आप अपने बाप की लाश को बेच नहीं दोगे? चुप है। ताया जी, मुझे को 1 करोड़ रुपया भी देना तो मैं अपने बाप को जीते जी बेच डालूं। हेलो, लाश मिली? आपको क्या लगता है मैं लाश जेब में लेके घूमता हूँ? मिल जाएगी तो फोन कर दूंगा। सुनो, क्या है? वो क्या चाहिए? वो जो पूरा होता है ना, वो पूरा वो ऐसा चाहिए, वो मुझे ऐसा वो... जल्दी बोलो क्या चाहिए, बंदा सब सप्लाई करता है, खाना पीना वगैरह वगैरह। लाश? एक किडनी मिल सकती है। किडनी नहीं बाबा, पूरी लाश चाहिए। पूरी लाश चाहिए? चलो देखता हूँ, कुछ चक्कर चलाता हूँ। अरे हम इतनी बर्फ क्यों डाल रहे हैं ताकि ये बुढ़ा सड़ ना जाए? टू लेट, सड़ू तो ये बुढ़ा हमेशा से। अरे ये हॉस्पिटल है, रोज 2-3 लोगों की विकेट तो गिर ही जाती है ना। अब उसे देखो, उसका बाप बहुत सीरियस है। तुम्हारा गुड लक अच्छा रहेगा तो 2-3 घंटे में उसका विकेट उड़क जाएगा। अरे तुम लोग रोने का राशन अभी खत्म कर डालेंगे तो ऑफ होने के बाद में कौन रोने वाला है? चुप बैठो। डाल रही।
कोई ऑलरेडी मरा हुआ नहीं है क्या? एक था और उसकी मैयत निकल चुकी है। मैयत रुक नहीं सकती। अब तक फूंक दिया होगा उसे। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे उसके बाप के लुढ़कने का इंतजार करो। इंतजार? आधी लाइफ तो डैड के मरने के इंतजार में गुजर गई, अब उसके मरने के बाद भी इंतजार करो। मम्मा बुढ़ा तो मर गया। अब मैं बहुत बड़ी आइटम गर्ल बनूंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें सिखाएगी। मैं भी बहुत बड़ी डांसर थी और बड़े बड़े राजा महाराजा। हेलो हेलो, कहाँ गोइंग यू? मैं कहीं भी जाऊं तुमसे मतलब? मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं अपने भाई के कमरे में जाऊंगी। जो भी हो, तुम अकेले अंदर नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। नो नेवर। मैं जाऊंगी, रुक के दिखा। मॉर्निंग। हाँ, हम क्यों किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुम ऊपर क्या कर रहे थे? अजीब सवाल पूछती है। सांप को केसर का दूध देने गया था ना, ये बगैर तो बाथरूम नहीं जा सकते ना। तुम सांप जी को दूध देने गए थे? ये देखो बड़े मजे से पिया और अब तो बैठ चुके होंगे। ओके बाय बाय। एक मिनट रामू काका, ये अंगूठी तो बाबूजी की है ना? हाँ, तो हमने कब कहा कि उनकी नहीं है? उन्होंने ही मुझे दी है। बाबूजी ने आपको ये अंगूठी दी है? कहा कि रामू, तुमने जिंदगी भर इस परिवार की सेवा की है और मेरे घर वाले तो तुम्हें कुछ देंगे नहीं, तो ये अंगूठी तुम रखो। चोर, तुमने ये चोरी की? ये मैंने चोरी नहीं की है। चोरी की है? चोरी नहीं की है। संजना, he's definitely dead. मैं जानती हूँ। पर ये रामू काका क्या कह रहे थे? मैंने चोरी नहीं की है। कुछ बोल रहे हो? लक्ष्मी तुम्हें ये अंगूठी नहीं दे सकता। ये मैंने नहीं चुराई है। चोर 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 चोर। ये फोन किसे कर रहे हो? पुलिस को। Oh my God, तुम calling cops? हाँ, पुलिस आएगी, साहब जी से सवाल पूछेगी, तब सच का पता चल जाए। दादाजी से? अंगूठी उनकी है ना? No, never. जल्दी से श्रुति वायर काट दे। अबे इसका वायर नहीं होता, ये वायरलेस है जाहिल। वायर काट दे। रुक जाओ, अगर पुलिस आकर बाबूजी से पूछताछ करेगी तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा कि हम सब मिलकर रामू काका पर शक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। रामू काका जी। इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज जाइए। ठीक है। रामू काका जी। आपको कुछ और चाहिए? मुझे सोचने का वक्त तो दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक। चोर कहीं का। क्या हॉस्पिटल है? आदमी मर गया फिर भी पैसे मांग रहे ले। तुम्हारी बाप की लाश है देखो क्या रे? ना? बेचेगा लाश को? क्या बोला? 10,000 रुपए दूंगा। क्या करेगा लाश का? तेरे को क्या लेना देना? बोला ना 10,000 दूंगा, बोल। साला तेरा क्या अमीर आदमी है तो पैसा देके कुछ भी खरीद सकता है क्या? हाँ? हम साला गरीब लोग का इमोशन नहीं है क्या? साला तेरा बाप मरेगा, मैं 10,000 रुपए देगा, बेचेगा लाश को? कैसा आदमी है रे? अपने बाप का लाश बेचने का बात करता है। कोई बेटा बेचेगा क्या अपने बाप? साला भी 3 लाख रुपए होता तो बात भी होता था ना? 3 लाख? अच्छा 2 लाख डन। उतार लाश को। एलके मरता था वो अलग बात थी। एलके के फ्रेंड को हम जानते भी नहीं है, तो फ्यूनरल में जाने की क्या जरूरत है? अरे एलके वहाँ जरूर होगा। हमें वहाँ साथ देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम उसके दुख के वक्त उसके साथ हैं। नहीं डैड बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकते। जानकर अत्यंत प्रसन्न होगा। बस अब एलके का अंगूठा लगने की देरी है। अगर तुम्हारे दादाजी को तुम्हारे वीडियो एल्बम में काम करने में कोई इतराज नहीं, then I'll be too happy to release the same. Thank you, uncle. अंकल नहीं, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। Okay, uncle. डैडी, मुझे कल की अपॉइंटमेंट चाहिए। यहाँ शमशान में धुएं से मेरे सारे बाल सत्यानाश हो गए। क्या साहब, क्या सही एक्टिंग करे रहे? आप लोग कुछ बोनस दो ना। तुम निकलो यहाँ से, आउट। श्रुति, देखो मुझे चिता की आग ठंडी होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। तुम डैड को लेके घर जाओ, ओके? सर, so nice of you to come, sir. बहुत अफसोस हुआ, एलके नहीं दिखाई दे रहे। उनसे अपने दोस्त का हाल देखा नहीं क्या? इसलिए अभी भी घर चले गए। इट्स टू बैड। जी, मैं उनसे मिलना चाहता था। खैर, शाम को घर पे मिलने आ जाओ। I don't think so कि वो आज उठ पाएंगे। उन्हें गहरा सदमा लगा है सर। डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है। हाँ सर। आज भोईवाड़ा शमशान घाट में लक्ष्मीकांत कबाड़िया उर्फ एलके के करीबी दोस्त कृष्णकांत लबाड़िया उर्फ केएल का अंतिम संस्कार किया गया।
एलके इस मौके पर खुद भी मौजूद थे, मगर वो अपने करीबी दोस्त की मृत्यु से इतने परेशान थे कि वो खुद भी अपनी गाड़ी से नहीं। अंजू, मालकिन के जो सारे जेवर जो तुम्हारे पास हैं, साहब जी ने कहा है कि निकाल के मुझे दे दो। कहा कि रामू, जब भी तेरी शादी होगी बहू को क्या जेवर देगा है? और मेरे नालायक बच्चे तो तुझे कुछ देंगे नहीं। मालकिन के सारे जेवर तू ले। पापा कैसे बोल सकते हैं यार? क्यों? पापा की बोलती बंद हो गई है? ओए चुप कर। समझ गया। तू हमारे घर में चोरी करना चाहता है ना? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ओहो, तू मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं पुलिस को फोन लगा देता हूँ, इसलिए तो मैं फोन साथ में लेके घूम रहा हूँ। बुलाते हैं पुलिस को, साहब के सामने सारे सच उगलवाए। सारे सच? सारे सच। क्या कर रहे हैं आप? रामू काका इस घर के कितने पुराने नौकर हैं और आप इन पर शक कर रहे हैं? बहुत बुरी बात है। रामू काका जी, मैं जेवर लेकर आती हूँ। ठीक है। और कुछ चाहिए? हाँ, साहब जी ने कहा था कि रामू, जब तू घोड़ी पे बैठा था ना, तब समीर की गोल्ड चेन पहनना, बहुत अच्छी लगेगी तुझे। मेरी चेन? हाँ। नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? दे दो। उतार के दे दो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम करोड़ों में खेलने वाले हैं। The IPO has been a super success and has been subscribed several times over. तब तो हमें डेट की मौत छुपाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट दुआ कल सुबह डैड के डेथ का अनाउंसमेंट कर देंगे और उसके बाद हम सब मालामाल। और रामू काका को लंगोटी पहनाकर पिछवाड़े लात मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। तू क्यों खुश हो रहा है बे? रामू काका के साथ तुझे और तेरी माँ को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तब जाकर मैं अपनी जिंदगी चैन से विद्या के साथ गुजार पाऊंगा। विद्या ही मेरे जीने का सहारा है। मेरे सारे सपने अधूरे रह गए मेरी शादी की वजह से। अब विद्या के साथ ही पूरे होंगे। हरिओम। मैं ये क्या? तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना। तू खाना खा ले। मैं छत पे तो कोई नहीं है। तू खाना खा। एक बार इस वसीयत पर एलके का अंगूठा लग जाए तो उसका सबसे बड़ा शेयर तुम्हें मिलेगा। अपने शेयर में से अपने बेब्स को भी दक्षिणा दोगी ना? Of course, babes. जो मेरा है सहारा तुम्हारा। You are rocking, baby. यहाँ क्यों आयो? अब उन्हें बोलने को आया साहब कि एक बॉडी रेडी है, एकदम ताजा, एकदम फ्रेश। बोले तो अपना अंकल लुढ़क गया ना। हाँ तो? अरे तो बॉडी ले लो ना साहब। अंकल का सॉलिड बॉडी था साहब। फोटो वीटो खींचने में एकदम मस्त लगेगा साहब, और एकदम यंग बना। तो बोले तो रोने में भी मजा आएगा साहब। तुम्हें क्या लगता है हमने कोई मुर्दा घर खोल के रखा है यहाँ पे? निकलो यहाँ से। अरे साहब, आओ। तुम बिजनेस का बात करता है साहब, आप तो बिजनेस समझता है साहब। क्या कैसा बिजनेस करता है? बुरा टाइम के लिए एक आधा लाश रखना मांगता है। एलके ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। समीर कबाड़िया से मेरी शादी करा दी और इस नरक में झोंक दिया। मैं आज तक चुप रही हूँ सिर्फ तेरी वजह से। मॉम, आज दादाजी की डेथ अनाउंस होने वाली है और कल तक सारे पैसे लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। एंड देन विल बी स्क्रूड मॉम, क्योंकि डैड हमें कुछ नहीं देंगे। मैंने तुझे कहा ना, तू चिंता मत कर। जो तेरा हक है वो तेरा बाप तुझे जरूर देगा। प्रेरणा दी, जाहिर है आप इस आईपीओ की सुपर सक्सेस आप सब बहुत खुश हो गए। Of course, आज पूरा कबाड़िया परिवार जश्न मना रहा है। एलके की तबीयत कैसी है? प्लीज नो पर्सनल क्वेश्चंस। अच्छा होगा कि आज हम केवल आईपीओ के विषय पर ही चर्चा करें। हेलो, रोहन अलेक्जेंडर बोल रहा हूँ। एलके घर पे ही है ना? हाँ साहब जी घर पर ही है। कह देना मिलने आ रहा हूँ मैं उनसे। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अरे समीर, अब क्या चाहिए? तुमने मुझे जो सोने की चेन दी थी ना, वो भाई मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने बेच दी। बेच दी? साहब भी नाराज हो गए। साहब ने कहा कि रामू तू धंधा कब सीखेगा? सिर्फ चेन बेचने से तेरा क्या होगा? चेन के साथ साथ तो समीर की सोने की घड़ी भी बेच दे, तब जाके बात बनेगी। और लुच्चे, अब मेरी घड़ी पे नजर है तेरी? तू कान के नीचे एक। पुलिस को फोन कर रहा है ना तू? समझदार हो गए। बर्बाद कर दे, कर दे बर्बाद। क्या कर रहे हो समीर? कौन से? कुछ नहीं, वर्कआउट कर रहा था। एलके कहाँ? मर गया। मर गया? मर गया 2 दिन पहले ही होटल में। लेकिन कैसे? उनकी उम्र में आप भी अगर बंदर की तरह गुलाटी मारोगे तो आप भी मर ही जाओगे।
ये बात हमसे क्यों छुपाई? पैसों के लिए सांप की लाश पर बर्फ में रखी है। मतलब ये सब 2 दिन से चल रहा है। तो हमारी घड़ी बंद है। सोने की घड़ी होती तो सही वक्त बता देती। सब कुछ हो गया और तुमने हमसे छुपा क्यों? रामू काका जी, अरे कुछ करो। ठीक है, कर देता हूँ। रामू काका कुछ नहीं करेंगे, जो भी करना है मैं करूंगा। तुम क्यों हंस रहे हो? यार कैसे बेवकूफ बनाया आपको। साहब ऊपर ही हैं। उन्होंने कहा था रोहन साहब जैसे आएंगे तुरंत ऊपर भेज दो। इस बुड्ढे ने भी दुखी कर दिया। कोई बीमार नहीं है, बोर हो गई है। एलके की फैमिली में हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर जाता है। अब कोई मर गया ना, मैं नहीं आऊंगी। चुप रहो। हेलो, लक्ष्मी आ गया। हटिए प्लीज प्लीज, हटिए प्लीज। ए, इन लोग का तो घर का ही बुड्ढा है रे। सब बंधुगण ध्यान से सुनिए। आप सबसे प्रार्थना है कि आप एलके को अपने भाई के साथ एकांत में छोड़ दें। धन्यवाद। ये मीडिया वाले भी कमाल हैं। किसी को अफसोस मनाने का मौका ही नहीं देते। उन्हें पता नहीं है क्या कि मेरा लक्ष्मी कितना अपसेट है। What's happening? एलके हैं? एलके अंदर है, वो अपने चचेरे भाई के साथ आखिरी बार कुछ समय गुजारा है। मैं यहाँ चर्च में छुपी हूँ और हम एलके की आखिरी मुलाकात अपने चचेरे भाई के साथ एक्सक्लूसिवली ऑन मीडिया प्लेट्स देखेंगे। जो इमोशनल बॉन्डिंग मैं यहाँ देख रही हूँ, 2 भाइयों के बीच ऐसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा था। एलके के गले में गलती से जो फूलों का रीत गिर गया था, उसे एलके ने अभी तक नहीं उतारा है, क्योंकि उनके मरे हुए भाई के शव पर फूलों के रीत चढ़ाए गए थे। आप देख सकते हैं कि एलके एकटक अपने भाई को देख रहे हैं। इस सदमे की वजह से एलके खुद एक जिंदा लाश बन चुके हैं। ज़ूंगर ज़ूम। साफ जाहिर है कि एलके गम में डूबे हुए हैं। लगता है किसी भी वक्त उनकी आंखों से आंसू का सैलाब निकल पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। I've never imagined this kind of love between two brothers. इस सीन को देखकर मैं भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। This is Tanana Singh, returning you to studio. Sorry. मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से एलके के साथ आज पूरा देश रो पड़ा। हमारे टीआरपीज़ तो आसमान छू गए और इसका इफेक्ट आपके शेयर वैल्यू पर भी पड़ेगा। फायदा तो आपके चैनल को भी हुआ है। Nothing in comparison to your advantage. You see, आप अमीर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। आप चाहते हैं कि आप ही के घर में दिवाली हो, आप ही के घर में पटाखे चलें और आप ही घर में मिठाई बांटें। तो तुम चाहती हो एलके ग्रुप में थोड़े से शेयर्स बस। थोड़े से तुम्हारा मतलब? A few thousand. A few thousand shares, हाँ? नींबू पानी। Can I please have some ice? नहीं, वो बर्फ का आजकल प्रॉब्लम नहीं, क्या है ना कि लक्ष्मी आजकल ज्यादा बर्फ यूटिलाइज करता है। बीमार हैं। बर्फ है ना, टीवी की इतनी मशहूर हस्ती हमारे घर में हो और बर्फ तक ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ के साथ नींबू पानी कितना डिफरेंट टेस्ट करता है। इट्स रियली रिफ्रेशिंग। रामू, पहली बार तुमने समझदारी का कार्य किया है। हरिओम। स्कॉच का फ्लेवर भी कुछ अलग ही है। लगता है बाबू भाई ने इस बार असली माल भेजा है। रामू काका, ये आइस इतनी अचानक आई कहाँ से? साबजी से ना, थोड़ा अटक। क्या हुआ? सॉरी, कुछ नहीं, वो गले में कुछ अटक गया था। क्या हुआ? कौन हो? मुन्ना, बॉडी सप्लायर। बॉडीज? हाँ, लाश रहता ना, लाश। रंजीत, ये कुछ बेचने आया है। क्या बेचने आया भाई? लाश। हम भी इसी तरह झटका खा गए थे। मुन्ना भाई, हम क्यों लाश खरीदे? घर में ऑलरेडी एक लाश पड़ी है। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर में लाश? नहीं, ये कोई मामूली लाश नहीं है ना। ये लाश तो कभी चलती है, कभी फिरती है, कभी यहाँ दिखती है, कभी वहाँ दिखती है, पर ये तो ऐसी लाश है कभी कभी औरों की मैयत पे भी जाती है।
रामू बाबा ये मुझे मारता है। ये देखो, ये है हमारे घर की जिंदा लाश। ऊपर से एकदम ठीक ठाक दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो गया। ए गणपत, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ। ये जरा मालूम करना, मार्केट में किसी को स्वामी का लाश मांगता है क्या? प्रेरणा, तुम बताओ ये कितना खोखला आदमी है। रामू काका चुप रहो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हरिओम। समीर तुम बताओ कितना खोखला है ये। कोई मुझसे बात मत करो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है। हरिओम हरिओम हरिओम। ए मुर्दे, तू सबको टेंशन देता है। अब जाके दोनों का टेंशन दूर करो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस। मुझे मारा? मुझे मारा? तुझे तो मैं ठीक कर दे। मैडम, अब साहब जी को बताइए कि ये बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया। चलिए साहब जी के पास। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। ऐसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पकड़िए और माफी मांग। क्षमा। ब्रेकिंग न्यूज मैडम, स्वामी टचिस सर्वेंट्स फ्री। पर रामू काका, वो आदमी तो लाश बेचने आया था ना? लाश नहीं, छाछ। छाछ बेचने आया। छाछ? साहब को दूध की बीमारी है, छाछ से ही दूर हो सकती है। अपन खाली देर को बोलने के आया क्या? अपने पास एक ताजा बॉडी पड़े लेके एकदम टिप टॉप कंडीशन में, समझा क्या? सुन मेरा बात सुनना, तू अच्छा आदमी है क्या? तू अपना पहला कस्टमर है, तेरे साथ अपना धंधे का बोझ नहीं होना है क्या? इसलिए अपन तेरे को बोलता है कि कल तक अपन मैयर होल्ड करेंगा क्या, लेकिन उसका होल्डिंग चार्जेस लेगा 50,000 रुपया प्लस सर्विस टैक्स, समझा क्या? TDS काट के नहीं लेगा। देखो रंजीत, एक सीरियस प्रॉब्लम है। केमन आइलैंड्स के बैंक के साथ मेरी बात हो चुकी है। कोड के बिना पैसा निकालने का बस एक ही रास्ता है, कम बैन आई स्कैन। कहीं तुम डैड की लाश को अपने साथ ले जाने की तो नहीं सोच रहे? एलके की लाश के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस उसका लेफ्ट अंगूठा और राइट आंख चाहिए। इम्पॉसिबल, मैं अपने डैड के बॉडी के टुकड़े टुकड़े नहीं होने दूंगा। बट आई वांट इट। मिस्टर रोहन अलेक्जेंडर, तुम पॉलिटिशियन लोग अपने आप को समझते क्या हो कि पैसों से कुछ भी खरीद लोगे? हम अमीर आदमियों के कोई इमोशंस नहीं होते। अपने बाप दादा की लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो भी फ्री में। हाँ, अगर 10 करोड़ रुपए दोगे तो टुकड़े कर भी देंगे। वाह, शाबाश बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। So it's a deal, रंजीत। ग्रेट। एलके की आंख और अंगूठे के बदले 10 करोड़। चीयर्स। पर रोहन कुछ एडवांस हो जाता तो? You know how it is. I know how it is. 1 लाख 2 लाख एडवांस। ये वाली जेब। बहुत ही लुच्चे आदमी हो यार। 160, 2 लाख 160 हुए, बाकी कल रंजीत आ गया यमदूत। रंजीत साहब ने अभी अभी 2,160 रुपए मंगाए। रामू काका, अब क्या हो गया? साहब जी का दाएं हाथ का अंगूठा कट गया। अंगूठा कट गया? कैसे कटा? डॉक्टर साहब ने काटा। सॉरी डैड। What do you mean sorry? साहब जी ने मुझे कहा कि रामू, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उनको अभी के अभी जाके 2,160 रुपए दे दो, नहीं और तो अगर पैसे नहीं मिले तो लक्ष्मी ने कहा है एक पुलिस को बुला लो। बड़े अंतर्यामी हैं बाबा। रंजीत, एलके नहीं सही सब काम। पॉलिटिशियंस के अलावा और लोग भी मुर्दों से बात करते हैं। ये लो 2,160 पूरे। रियल टॉक है, टेल यू। अंगूठा तो मिल गया, अब आंख। हे गाइस, वो तो मुझ पे छोड़ दो। सुबह सुबह क्या हुआ? थैंक यू। न जाने क्यों अब मैं हवाओं में चल रहा हूं। Here's your money. पूरे हैं जी। तुम गाड़ी में इंतजार करो, मैं आता हूँ। रंजीत, ये रहे तुम्हारे पैसे। It was a pleasure doing business with you. Same here, रोहन। तुम लोग एलके के डेथ का अनाउंसमेंट कर सकते हो। अंगूठा। ओ। अरे, इस खुशी के मौके पे क्यों रो रही हो बुआ? वो मेरे लक्ष्मी का अंगूठा ले गया है, वो वापस करवा दो। क्या करेगी तू उस अंगूठे का? अरे चुप कर, तुम्हें क्या मालूम मेरी कितनी यादें जुड़ी है वो अंगूठे से। जब मैं छोटी थी और मेरी मम्मी डार्लिंग चल बसी ना, तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि कोई मुझे भीख नहीं देता था। तो लक्ष्मी यही अंगूठा मेरे मुंह में रख के मुझे सहलाता था। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो अंगूठा चूस चूस कर बड़ी हुई हो बुआ। हाँ हुई हो, एनी प्रॉब्लम? बुआ, अब 10 करोड़ आ गए हैं ना?
जितने अंगूठे चाहिए उतने खरीद लेना तुम। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही अंगूठा चाहिए। चुप कर निखार। अरे अंग्रेजी हुआ, शट अप। तन्ना, जाके लाश को तैयार करो, जाओ। कम ऑन, लेट्स प्रीहीट द बॉडी अगेन। हाँ, नहीं, जाओ। मेरे लक्ष्मी को अच्छी तरह से गर्म करना ओए प्लीज। चुप कर। सबसे पहले हम वो पैसा तिजोरी में रख देते हैं, नहीं तो वो रामू का आके फैल ले जाएगा। हाँ, हाँ। चलो चलो चलो, अरे जल्दी कर। पैसे सेफ में रख दिए। अब तुम तराना को प्लीज जल्दी से फोन करके बता दो कि बुड्ढा मर गया। ओके चलो, कम ऑन जल्दी करो। 1 मिनट, एक्टिंग भी तो करनी है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। अरे ओवर एक्टिंग मत कर, रो। हेलो तराना। प्रेरणा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तराना। आई नो, मुझे अभी अभी खबर मिली। आई एम रियली सॉरी। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हुआ सुनकर। 3 दिनों में तीसरी मौत, और इस बार घर में। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ इस ट्रेजेडी के बारे में ब्रेकिंग न्यूज देने के लिए। हुआ क्या? उसको मौत के बारे में पहले से ही पता था। वो अपने घर के बाहर है। बुड्ढे की मौत की खबर तराना को कैसे पता चली? तुम लोग यहाँ चिल्ला क्यों रही हो? दादाजी की लाश टब में नहीं है। लाश गायब है, तराना को मौत की खबर पहले से है। What the hell is happening? कबाड़िया फैमिली पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। 3 दिनों में हुई ये तीसरी मौत के बारे में जानने के लिए बात करते हैं कबाड़िया फैमिली के खानदानी नौकर रामू काका से। रामू काका, इस बार किसकी मौत हुई है? क्या बताएं, भगवान ने हमारे प्रिय विद्युत बाबा को उठा लिया। बाबा को उठा लिया? पापा को उठा लिया? बाबा को उठा लिया? अरे बाबा तो यहाँ है। बाबा को किसने उठा लिया? हैरान परेशान है। बाबा की मौत कैसे हुई? इलेक्ट्रिक का शॉक लगा तो चल बसे। और इस खबर के बाद एलके कैसे? साहब की हालत बहुत बुरी है, वो इस दुख को सह नहीं पा रहे। उन्होंने कहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर विद्युत बाबा के क्रियाक्रम हो जाने चाहिए और उनकी कोई भी निशानी बचने नहीं चाहिए। तो क्या विद्युत बाबा का क्रियाक्रम भी चंदनबाड़ी में होगा? विद्युत बाबा साला विदूषक प्रभु के भक्त की खिल्ली उड़ा रहा है। कि विद्युत बाबा जैसे सिद्धि प्रताप महापुरुष हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की वजह से सारे देश में दुख की लहर फैल गई है। कुछ लोग तो काफी खुश भी हुए होंगे। इस बार इस निर्लज्ज नौकर ने सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी उसे चीनी कम है थोड़ी। क्या बात है? तुझ में है कम। ये द्वार क्यों बंद किया? इस विचित्र दृष्टि से क्यों देख रहे हो मुझे? चीनी कम है थोड़ी तुझ में है कम। आज तक जीते जी आपने इस परिवार के लिए जितना किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। और आज जो आप इस परिवार के लिए अपना जीवन दान दे रहे हैं, आप महान है बाबा, महान। मूर्ख, शुभ शुभ बोलो। आप चिंता क्यों कर रहे हैं बाबा? आप ही ने तो हमें शिक्षा दी है ना कि आत्मा अजर अमर है, और ये शरीर तो केवल एक नश्वर चोगा है जिसे आत्मा धारण करती है और फिर त्याग देती है। चुप नादान। हमारी कुंडली में लिखा है कि हम 105 वर्ष तक जीवित रहेंगे। बाबा, आकाशवाणी हुई है, ऊपर वाले ने आपकी कुंडली बदल दी। चुप रहे, हमारे क्रोध को अग्नि मत दो। क्रोध और भय त्याग दीजिए। अब तो आप मोक्ष प्राप्ति के अत्यंत निकट हैं महाराज। तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। अरे मर तो तू ऑलरेडी गया है। टीवी पर न्यूज़ चैनल नहीं देखता क्या? छक्का! अबे छक्का होगा तेरा बाप। अबे ये बॉल किसको मारा रे? ले बॉल देना। तुझे ऐसा दूंगा कान के नीचे घुमा के। ले क्या होता है? ठीक है, ए सीआर बॉल देना। ए सीआर बोबाला नहीं, सीआर बोले तो चंदन रमेश ले ले। MMRDA। मालूम है ना तू किससे बात कर रहा है? बॉल देना, बोल बच्चन मत दे। बॉल देना। ले ले
मैं देता ना बॉल, एक बार रूपा से प्यार से कहलवा दे, ले ले बॉल देना। आए हाय। ए चंदन, ज्यादा चीपू मत कर, नहीं तो ये बल्ला देखा है ना, इसे से यही धो डालेंगे, वो भी बिना साबुन के। मैं देता ना साबुन, पूरा धो डाल। कितनी बात है कि हमसे मुंह मत लगाया करो, वरना हाँ। वरना ये झाड़ू देखा है ना, झाड़ू ऐसे पिछवाड़े में डालेंगे ना कि सीधे बांद्रा पहुंच जाएगा। 4-6 तीली कम कर लेना, मेरे को तो अंधेरी तक जाना है। बेशरम। अपनी जुनू तो संभाली नहीं गई, बस दूसरों की छेड़ने का मौका चाहिए। तेरी इसी हरकतों की वजह से तेरी जुनू तुझे छोड़ के भाग गई है। अब जाना, मुंह क्या देख रहा है, कोई काम भी नहीं करने देता सुबह सुबह। ले ले दे दे, ले ले दे दे, ले ले दे दे, क्या ले? ले ले। What the hell is going on? Where are juniors? जूनियर्स कहाँ है? साले सब के सब यहाँ पे आलसी है। आज शूटिंग करनी है कि नहीं? साला एक असिस्टेंट सेट पे नहीं है। मैं इधर क्या झक मार रहा हूँ? हाँ? वो एडी का बच्चा किधर है? ए चलो रे, ये हट रे। ये ब्रदर्स प्लस सिस्टर्स ऑफ ब्रदर्स, शॉट देने चले, डायरेक्टर बुला रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, हाउ आर यू सर? बस आप ही का इंतजार कर रहे थे सर। सर वी आर रेडी। प्लीज सर, आप मेकअप करा लीजिए। सबसे पहले हम वो रिंग पहनाने वाले सीन से शुरू करेंगे। 2 मिनट्स। शॉट 1, टेक 1, एक्शन। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मेरे दिल में एक आवाज आई थी कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। तुम्हें पता है, जब मैं पिज्जा खाता हूं तो मुझे तुम्हारी शक्ल उसमें नजर आती है। कट 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 कट। ए सेकी हसीना, अरे अपने मुंह से कपड़ा उतार। अरे तेरे को बोल रहा हूँ, उतार। सर 1 मोर प्लीज। टेक 2, एक्शन। जब मैं खाना खाता हूं, प्लेट में तुम्हारी शक्ल नजर आती है, यहां तक कि बाथरूम, किचन। कट 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 कट। हे सुबी, व्हाट द हेल यार? I'm tired of this shot. ए साले मादर पकड़ एडी। हाँ, तू क्या कर रहा है? मेरा बाप कंटिन्यूटी देखेगा। जूनियर आर्टिस्ट के मुंह पे कपड़ा मेरा बाप देखेगा। इसको कहाँ से उठा के लाया? अरे तू उसको बाहर उठा के फेंक, नहीं तो मैं तेरा मेकअप करता हूँ। अरे तेरे बदन से कपड़ा हटाने को नहीं बोल रहे, मुंह से कपड़ा हटा। चल सर, बदन से कपड़ा हटा सकती हूँ, मुंह से नहीं। ये चिल्को से एक्टर्स कंटिन्यूटी मैनेज नहीं होती क्या तुम लोग? हे एडी, व्हाट इज दिस यार? ए ना, कितनी बार बोला तेरे को मच मच नीचे। चलो शॉट से मार जाओ, शॉट से मार जाओ। आउट आउट इज ऑल दिस मैन। ना बाहर जा यार, खुद भी निकलेगी, मुझे भी निकलवाएगी। जाना गेट आउट। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे उंगली दिखाई? हाँ, सुभाष कक्कर को। अरे मैं तुझे इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा। आउट। नैना जी, आप पे डायरेक्टर साहब बहुत भड़के हुए हैं। भड़के? मेरे को उससे क्या लेना, इडियट। अच्छा, आपको आज की पेमेंट लेनी है, जो आप शायद भूल गई, पर मैं नहीं भूला। प्रोडक्शन वाले से लेकर आया हूँ। ओह थैंक यू। साला चाय भी बकवास। मैं तेरे को नैना एक चीज बताऊं, तू जूनियर आर्टिस्ट है ना बाबा, तो जूनियर आर्टिस्ट बना के रखना यार अपने आप को। मेरे मकाम तक पहुंचे तो मुझे समझेगा। अभी किसी को क्या खबर है कि मैं किस दौर की हवा हूँ। और एडी, तू तो जानता है मैं हमेशा के लिए जूनियर आर्टिस्ट बन के नहीं रहूंगी। मैं एक दिन मेन लीड हीरोइन बनूंगी। वाह, मेन लीड हीरोइन, मेरी माँ। ऐसे ब्रेक नहीं मिलता है। मुझे देख, 6 असिस्टेंट लगा था और आज क्या चीफ बनाऊं। तब भी कौन मेरे पीछे मेरे साथ चल रहा है? चीफ असिस्टेंट। साला ऐसा लगता है डायरेक्टर बनने का सपना साला सपना ही रह जाएगा। एडी, तेरे सपनों में ताकत नहीं है, इसलिए हकीकत नहीं बन पा रहे। लेकिन मेरे सपनों को मैं एक दिन सच बनाकर रहूंगी। वॉच। नैना, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। सिर्फ कॉन्फिडेंस? बाकी सामान भी लाइक करने वाला है मेरे पास। हेडलाइट, बम्पर, फेस कलर, लिप्स, स्माइल, सब है, देखना।
जिस दिन मेरे को एक मौका मिलेगा ना, मैं स्क्रीन को फाड़ के रख दूंगी। वाह यार नैना, चल मेरा तेरे से ये वादा है, हाँ? कि जिस भी दिन मैं डायरेक्टर बना, अग्नि कसम खा के कहता हूँ कि जिस भी दिन मैं डायरेक्टर बना, मैं तुझे एज ए हीरोइन साइन करूंगा। हाँ? ओ, तेरी एक सेकंड, सॉरी वो फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो, सॉरी, हेलो, हाँ हाँ कौन बोल रहा है? अरे सर आप दिल्ली? आई प्लान इट सर। मैं कुछ नहीं सर, मैं आ जाता हूँ। ग्रेट सर, थैंक यू सर। जय माता दी सर, जय माता दी। अरे नैना, तू तो मेरे लिए बिल्कुल कोई लकी मैस्कॉट के जैसे निकली है। अभी तुझसे बात की कि तुझे एज ए हीरोइन साइन करूंगा और यहाँ से प्रोड्यूसर का फोन आ गया। दिल्ली बुलाया उसने मुझे, 4 कॉलेजेस हैं उसके। लकी मैस्कॉट को साथ नहीं ले जाएगा तो बात कैसे होगी? ए चलना जल्दी, कितना भरेगी, कितना टाइम लगाएगी? बोलना इसको। क्या कर रही है? सारा पानी तू ही भरेगी क्या? एक बाल्टी भर ली ना, चलो भर। ए सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब करो। नहीं समझ। एक बाल्टी में क्या 2 जनों का नहाना धोना सब हो जाता है? अरे तो रोज रोज नहाना जरूरी है क्या? हमें भी तो पानी चाहिए ना। अब चल हट यहाँ से। अच्छा, तुम रहती होगी लिचड़ों की तरह, हम नहीं रहते, हम रोज नहाते हैं। रोज रोज तो वो नहाते हैं जो गंदे होते हैं। हाँ। हम तो साफ रहते हैं, इसलिए हफ्ते में एक बार नहाते हैं। वैसे भी शेर अपना मुंह रोज रोज कहाँ धोता है? अच्छा, कुत्ते भी मुंह नहीं धोते, लेकिन हम इंसान है ना, इसीलिए इंसानों की तरफ बर्ताव करना पड़ता है। चल महारानी रूपा, चाहे जितना मर्जी तू नहा ले, लेकिन तू रहेगी रिक्शा वाले की लुगाई ही ना। चुप करो रे, छोटे बड़े की शर्म और लिहाज है कि नहीं? झगड़ा कर रहे हो आपस में हैं? और रूपा तू फिजूल में इन लोगों के मुंह क्यों लगती है? हाँ, तू नहाने के लिए मेरे घर आ जाया करना, पानी हमेशा रहता है मेरे बाथरूम में। और तू कहेगी तो बाथरूम की कुंडी भी लगवा दूंगा, ताकि साला कोई ताका झांकी ना कर सके। लूज कैरेक्टर। ले हाँ बोल डार्लिंग। अपने बाथरूम में जाके ना अपनी माँ बहन को नहला, और ये जो तेरे कड़ी लगाने का खर्चा है ना, वो भी बच जाएगा। सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब करो। और ये ले, तू मरी जा रही थी, मरी जा रही थी, भर पानी। रूपा को नाराज कर दिया। रूपा ए ले ले। हाँ, मैं आऊँ क्या तेरे घर? मैं आऊँगा तेरे घर में। नहाना क्या करेगी? मेरा घर कोई धर्मशाला है? पानी भर सीधे। दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग। यार रहकर ना हम परेशान हो गए। अरे क्या हुआ? काहे गरम हो रही हो सुबह सुबह? अरे वही रोज का चिक चिक, पानी के लिए झगड़ा। अरे पानी नहीं हो गया जैसे पेट्रोल हो गया। हाँ? अगर घर में एक नल होता ना, तो हम जाके गंगा नहा लेते। अरे बहुत जल्दी तुम्हें ऐसा घर मिलने वाला है जिसमें एक नल भी होगा और 24 घंटा पानी भी। सुबह सुबह मजाक? अरे नहीं पगली, हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दी महाड़ा इस बस्ती को खरीद रहा है। सच्ची? हाँ हाँ। दिल्ली 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 दिल्ली, दिल का शहर लगे सानू प्यारा दिल्ली। सानू कोई ना फिकर इत्थे फिर दे आवा। नहीं रुकी। हाँ, हाँ कितना हुआ? 110 रुपया भाई साहब। हैं? क्या मुर्गा फंसाया तूने? हाँ, और दे दो क्या? ऐसे बहुत मुर्गे पड़े हैं दिल्ली में। चल आजा। चलो। एक्सक्यूज मी। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? या मैं माय नेम इज हैरी, मैं खन्ना साहब से मिलने आया हूँ फ्रॉम मुंबई। मिस्टर खन्ना से आपका अपॉइंटमेंट था? जी, कल रात उन्होंने खुद मुझे कॉल करके बुलाया। ओह आई एम सो सॉरी सर, बट मिस्टर खन्ना तो कुछ जरूरी काम की वजह से देहरादून चले गए। देहरादून? कब तक आएंगे? होपफुली 3 दिन में आ जाना चाहिए मैम। 3 दिन? अरे क्या साहब, अरे नहीं साहब, 10 के नीचे कुछ नहीं होगा। नहीं मेरी बात मानो, 10 के नीचे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ऐसा। हाँ ठीक है। क्या? ये ले। साहब आप आगे जाओ, मैं पहुंचता हूँ। ओके। वो तो एकदम कौला है रे अभी। लगता है शादी भी नहीं हुई होगी। अरे इसीलिए तो इधर आता है। अपने देश में वोटिंग करने की उम्र 18 है और शादी करने की 21 है। मतलब 18 साल का आदमी देश चला सकता है, लेकिन इसके लिए 21 चाहिए, है कि नहीं? मैं जाऊँ क्या उसके पास? अरे नहीं रे, वो पैसा अच्छा देता है ना, तो माल भी अच्छा भेजना पड़ता है। चल हट हलकट साला। हलकट बोली?
साली दिखती है प्रेम चोपड़ा जैसी, खुद को प्रियंका चोपड़ा समझती है। ए मेरी अम्मा, तू इधर काय को मेकअप कर रही है? वो 5796 वाला तेरा इंतजार कर रहा है, जाना जल्दी। क्या रे, फिर से वही लुक्का? अरे वो लुक्के के पास ही हुक्का है, जाना जल्दी। ठीक है, जा रही हूँ। नाटक करिए। ये माधुरी कहाँ गई यार? ए बिरजू, ये माधुरी आज एकदम कौला माल है, रूम पे जल्दी पहुंच जा, भाग। ठीक है, चल बिरजू। क्या चाहिए बेटा? जी वो एक बेड। बेटा, कुआं खोदने के लिए मूंगफली नहीं, ड्रिल मशीन चाहिए, ड्रिल मशीन। चल साइन कर, इधर साइन कर, चल। पैसा दिया कि नहीं पापा ने? हाँ बहुत है। शाबाश। छोटू, 14 नंबर पे पानी बेच रहे हैं। अधूरी, जरा धीरे चलना, पैर में संभलना। ले माधुरी, ये ले, लगा ले। क्या? फर्स्ट टाइम है क्या? हाँ, लड़की के साथ तो फर्स्ट टाइम ही है। मतलब गे है? नहीं, बस आज तक खुद की कंपनी में ही एंजॉय किया है। ओह मतलब आज तक हाथ गाड़ी चलाई है? कुछ ऐसा ही है। ठीक है, आज मर्सिडीज चला ले। चल, इसका भी मजा ले ले। तू भी क्या याद कर। चल चल, लाइन से चल। जल्दी जल्दी। माधुरी, क्या खाती है रे तू? एक बार देख तो ले इधर। करंट लगा, पावर को करंट। कौन है रे इसके साथ? जादव। ए गिल्ली का डंडा किधर है रे? अरे सावन, बुला उसको। ए चल बाहर निकल, चल। घेऊन ये आण त्याला। चल उधर खड़ा हो जा। सर, ये साला आजकल के बच्चे लोग भी झुनझुने से शहनाई बजा रहे हैं। सर, आजकल इंटरनेट से सब इंटर का कोर्स कर लेते हैं। नाम क्या तेरा है? अब कान में लौंगी लगाए क्या? नाम पूछ रहा हूँ, नाम क्या है? जी संस्कार। थू, साला नाम सूट करता तेरे को? है? ये संस्कार दिया इसके बाप ने, संस्कार बोले नाम। चमायला क्या है? ब्लैकबेरी है? ये अच्छा है आजकल के लड़कों में। गूदे में दम होना हो, फोन दमदार होना चाहिए। मस्त है। मुझे एक फोन करना है। हैं? मुझे एक फोन करना है। वॉल्यूम नीचे और आंख भी नीचे, ऐसा कुटर कुटर देखने का नहीं। क्या देखने तो फोन में? हट, चढ़ो। क्या फंक्शन है बघू याचं? अपना काम का चीज है जादव। हाँ सर। पता कर कितना लेते हैं क्या? किसको फोन करने का? तेरे को कच्चा लींबू? आर्य शिंदे जी को। कौन आर्य शिंदे? सर, ये यहाँ के एमएलए की बात कर रहे हैं। तेरा क्या लगता है? जी वो मेरे डैड है। हे काय ना, अगोदर सांगायचं ना जाधव। आजा, कोई बात नहीं, पहले बोलने का रे। अरे बार, तू शिंदे जी का बेटा होके तू रंडियों के बीच में अच्छा लगता है क्या? कल भविष्य में तू नेता बनेगा, अपने गाड़ी का ऊपर रेड लाइट लगा कर घूमेगा। आज तू रेड लाइट एरिया में घूम रहा है, गलत बात है रे। इसका क्या रंडी का? तेरे को ये मंडी में नहीं आना चाहिए है? पापा को पता चलेगा तो? अभी चल जा, तू घर पे जा और पापा को क्या बोलेगा? इंस्पेक्टर रमाकांत रांगूजी पवार मिले थे, उन्होंने नमस्ते बोला है, वो समझ जाएंगे क्या? अभी चल जा। और हाँ सुन, अगली बार मन किया ना, इधर नहीं आने का। इंस्पेक्टर अंकल को एक फोन करने का, होम डिलीवरी करवाएगा मैं क्या? पिज्जा से पहले पहुंचेगी रजिया, और तेरे पिज्जा से ज्यादा गर्म भी होगी, सुरसुरीत एकदम। क्या? चल जा, अभी शर्मा मत, निकल। और ज्यादा एवढूसा साला, हाँ?
पवार साहब। ए जग्गू सेठ, क्या किधर था इतना टाइम? हाँ, तू भी ले रहा था क्या किसी की? अरे क्या साहब, चल रोकड़ा निकल। क्या बोलूं, धंधा बहुत खराब चल रहा। हमेशा का साला रंडी रोना तेरा। हाँ? ये स्टोरी ना किसी और को चिपकाने का। दुनिया में जो धंधा गंदा होता है ना जग्गू सेठ, वो कभी मंदा नहीं होता। चल निकल रोकड़ा। नहीं पर अरे साला ये टाइम पर चमाल है। एसपी साहब को भी कोई तमीज नहीं, कोई टाइम है क्या फोन करने का? तो साहब लेना पड़ेगा। जय हिंद सर। जी सर। नहीं सर, मैं मंदिर आया था सर, वो दिन में टाइम नहीं मिलता ना सर। नहीं, मंदिर बंद हो गया, मैं बाहर से दर्शन करके। हाँ जी, नहीं मैं पहुंचता हूँ सर अभी। यस सर। जी सर। अरे साइन हॉस्पिटल में कोई लफड़ा हो गया बोलते हैं। चल रहे, गाड़ी निकल। हाँ साहब। तू कल आके मिल मेरे को। हाँ साहब। चौकी पे। हाँ? तेरे को मैं आके मिलता हूँ कभी फुर्सत में। ग्रीन पहना कर अच्छी लगती है तू। हाँ? चला रे मंडली। जी बिरजू यादव जी, वो काम पे गए, हम उनकी ओ धर्मपत्नी। मुबारक हो। महाड़ा से ये लेटर आया है, यहाँ साइन कर दीजिए। महाड़ा? यहाँ पे साइन कर दीजिए। अच्छा, वो हमें बता रहे थे कि हमें कोई बड़ा घर मिलने वाला है। हाँ हाँ वही उसी के बारे में होगा ना? वही कंफर्मेशन लेटर। हाँ हाँ। भैया जी। हाँ रुकिए ना, आप इतनी बड़ी खुशी लेके आए हैं, मिठाई तो खा के जाइए। क्या बात है भाभी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ विलाती। हाँ। इसमें तो इनका नाम ही नहीं है। हाँ? अरे खटखटा के दरवाजा तोड़ दोगे क्या? आ रहा हूँ। अरे रूपा तुम हो? ओह, अरे बाप रे, आज चांद किधर से निकला? मैं सोच रहा था कि कोई तो आएगा, लेकिन बिरजू तुझे भेज देगा ये सोचा नहीं। उन्होंने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं। क्यों? ऐसे इंसान के पास क्यों आई जिसके पास बीवी नहीं है? क्या झाड़ू डाल के अंधेरी भेजने आई है क्या? नहीं। तो नहाने आई है। पानी नहीं है, पानी कम पड़ गया। हमें महाड़ा के अफसर से मिलना है। हाय, तो मिलना, अच्छे से मिलना। हमें आज और अभी मिलना है। हाँ चल ना, बिंदास चल। मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, बिंदास मिलना। चल 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 चल। क्या जहाँ करे ये कपड़े सुखा ना, मुझे देखने की खुजली साला। कुछ भी अच्छे काम की चलो तो मरभूकों की तरह मतलब नजरें गड़ा के बैठ जाते हैं। अरे उड़ के चलेगी क्या? बैठ ना, बैठ। जल्दी बैठ, तू तो दुल्हन की तरह बैठ रही है। चलें? क्या नाम बताया? साबरूपा। अरे तेरा नहीं रे, तेरा नाम तो मालूम है, तेरे पति का। वो बिरजू यादव। तो ये क्यों नहीं बोलती? गांव की है ना, गांव में पति का नाम नहीं लेते। पति का नाम नहीं लेती? जी जी जी। पर पति का सीधी है बेचारी। अरे मेरा मतलब ये है कि घर खर्चे के लिए पति से पैसा तो लेती है ना? वो तो शादी ही की है। हाँ? अच्छा, एक मिनट में देखता है, ठहर। क्या नाम है? बिरजू यादव, सावंतवाड़ी। अच्छा, ये तो इसमें है, लेकिन अभी क्या है कि डोमिसाइल जो है ना वो नहीं है। क्या है कि अभी नाम जो है केलकर। किसी केलकर से कर लिया क्या? हाँ साहब। अच्छा, तो इसमें अभी क्या है कि एनओसी लगेगा। इसका मतलब तेरे को एनओसी लेना पड़ेगा और घर का रजिस्ट्री तेरे नाम पर करना पड़ेगा और 15 साल का डोमिसाइल जो है वो लगेगा। साहब ये डोमिसाइल? हाँ हाँ, ये क्या होता है? वो तू मेरे पे छोड़, उसकी फिक्र मत कर।
क्या है कि तू ले लेके जान पहचान वाली है, इसलिए मैं तेरे को साफ साफ बोलता है 5 लाख रुपए का खर्चा होएगा। 5 लाख? 5 लाख? देख 5 लाख मेरे को दिखाई देंगे तो तेरे पति का नाम इस प्रोजेक्ट में आएगा, वरना 5 लाख बेचारी कहाँ से देगी? कुछ और नहीं हो सकता क्या? तू बहुत इसकी फेवर में बोलता है, कुछ है क्या इसके साथ? पूरी बस्ती में सिर्फ इसी का कैरेक्टर अच्छा लगता है हमें। अब क्या है कि घर हर आदमी का सपना होता है। अब ये अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी करेगी। कुछ भी? हाँ हाँ कुछ भी करेगी। गरीब है बेचारी, साहब समझो। गरीब तो नहीं है, खैर तू जा, मैं इससे बात करता हूँ। जी जी आप बात कर लीजिए। नथु भाई टाइपिंग करो, कान जरा बंद रखो। पेन रे जरा चाय का बोलना। हम कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे थे। हम अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो काहे ना, आज हमारा ऑटो खराब हो गया था तो जाकिर भाई बोले कि संवार के शाम को देंगे, बस चले आए घर पे। बिरजू। अरे यार ये लेले काहे हमें आवाज दे रहा? बिरजू। अरे आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, तुम जरा चाय देखना, हम जरा लेले से मिलकर आते हैं। अरे लेले भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक तो है ना? मैं तो बस मुबारकबाद देने आया था घर के लिए। लेले भाई सुना तो हमने भी है, मगर कोई अभी तक सरकारी सूचना नहीं मिली हमें। तुम तो चिंता ही मत करो, तुम्हें तो डायरेक्ट कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। ये आपको कैसे पता? अरे देखो तुम्हें अपनी औरत पे भरोसा है ना? बिल्कुल है। और हमें तुम्हारी किस्मत पे भरोसा है। ये तो आपका बड़प्पन है। और जिस घर में साक्षात लक्ष्मी हो उससे तो घर मिलना ही है। और दसो जी क्या हाल है? सर बस बढ़िया हाल है सर, तुसी आ गए बस। सॉरी जी, आप लोगों को मेरी वजह से 3 दिन वेट करना पड़ा जी। और की फर्क पैंदा है सर, इसी बहाने हमें आपकी दिल्ली देखने का मौका मिल गया। और जी मुझे आपकी हीरोइन। ओ मेरी कितने सर रहते तो हीरोइन है। नैना, आपके माता पिता ने आपका नाम जरूर आपकी आंखों को देख के रखा होगा। बहुत खूबसूरत है। सर यू आर परखी सर, परखी। शी हैज वेरी ब्यूटीफुल आईज सर। नैना शो योर आईज। वाकई वेरी वाकई सर, वाकई। हाँ तो भाई एडी सर। और दसो सर। भाई आपकी कहानी तो मैंने सुनी रखी है सर। माता रानी जानती है कि मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैंने फिल्म बनानी है तो आपके ही साथ सर, और बड़े कैनवास पर बनानी है सर। चाहे मुझे उसके लिए अपनी पटियाले वाली एक फैक्ट्री बेचनी ही क्यों ना पड़े। नहीं सर, माता रानी की मेहर रही तो सर आप 4 और फैक्ट्री खोलेंगे सर। जरूर, 8 तो है ही, 4 और खुलेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो बताओ फिल्म का टाइटल क्या रखा है? सर यू विल गो बंकर्स। हैं? नहीं सर, मेरा मतलब है कि सर आपको बहुत पसंद आएगा सर। ताजमहल, मोमेंट ऑफ लव। ताजमहल जी, बहुत बढ़िया जी। हैं? आपकी रोमांटिक कहानी पे बहुत सूट करता है जी। हैं? हाँ तो ये बताओ अभी शूटिंग कब से शुरू करनी है? सर स्क्रिप्ट तो पूरी रेडी है सर, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो कल से ही शूटिंग शुरू कर सकते हैं सर। नहीं जी, कल से नहीं हो सकती जी। अजी टेंशन वाली कोई बात नहीं है जी। हैं? कल तो मैं आप दोनों को साइनिंग अमाउंट जो दूंगा है, आप लोग मेरे छतरपुर वाले नहीं, नोएडा वाले फार्म हाउस पर आ जाओ शाम। विजिटिंग कार्ड सर। वहीं पर बैठ के बाकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेंगे। हैं? जय माता दी सर। जय माता दी। तो वो इंस्पेक्टर बोला कि अब मेरी माँ को भी सूली पर चढ़ना पड़ेगा। तो फिक्र ना कर, सारा मामला रफा दफा कर दूंगा। मैं हूं ना। थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरी माँ ने मेरी इज्जत को सूली पर चढ़ा दिया। डरने की बात ना है। हाँ?
और फिर एक दिन मैं उस शख्स से दूर भाग आई, यहाँ मुंबई। बार में डांसर बन गई, माया से माधुरी बन गई। चंद साल कटे, मगर बार बंद होने के बाद मैंने कई जगह जॉब की तलाश की, मगर यहां भी हर शख्स 5,000 की जॉब के लिए रोजाना एक ही जॉब कराना चाहता था। तो मैंने सोचा कि महीना भर काम करने की बजाय क्यों ना मैं भी रोज पैसा कमाऊं। और बस अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है माधुरी। तू चाहे तो इस धंधे से किनारा कर सकती है, किसी अच्छे आदमी से शादी भी मना सकती है। बिरजू, जिन लोगों की जिंदगी गाली हो ना, वो भजन नहीं गाया करते। और वैसे भी आज मैं अपने इस हाल से दुखी नहीं हूं। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सुहाग रात तो रोज मनाती हूं। पति नहीं मिला तो क्या हुआ, करोड़पति तो रोज मिलते हैं। प्यार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आई लव यू तो हजारों के मुंह से सुन चुकी हूं। साहब साहब काय पाहिजे तुला? साहब हम रूपा, आपने कहा था ना कि घर का लेटर दे देंगे। लाइए क्या? क्या साहब? 5 लाख रुपए लाइए क्या? लाइए तो लेटर भी ले जा। क्या बोल रहे हो साहब आप? उस दिन तो होटल में आपने हमारे साथ साहब आपने कहा था कि आप हमारे घर का लेटर दे देंगे। तू येड़ी है क्या रे? है? थोड़ी देर के लिए तेरे को मैंने अपनी घरवाली क्या बना लिया कि तेरे को पूरा का पूरा घर चाहिए? 5 मिनट के लिए तू मेरे बिस्तर पे रही तो क्या 5 लाख रुपए में छोड़ देगा? लाइए तो ले जा, अभी का अभी पैसा लाइए। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो सब कुछ आपको दे दिया और आप। अरे जो दिया है उसकी क्या कीमत है? हाँ क्या कीमत होगी? 500 रुपए होगी ना? ठहर, ये ले, ये 500 रुपए ले। अरे ले 500 रुपए ले और जा यहाँ से, निकल यहाँ से, जा। ये भाड़ू साले। क्या बोली? वही जो तू सुन रहा है। ये 500 रुपए ना जाके अपनी बहन को देना। क्या? चुप हरामखोर, सीधे सीधे हमारे घर का लेटर दे दे, नहीं तो ऐसा फजित करेंगे ना कि तुम्हारी माँ को भी शर्म आएगी कि कैसे औलाद को पैदा किए। ये क्या करेगी तू? सबको बता देगी मैंने तेरे साथ में जो किया है? जा बता। नहीं साहब, सब हम माफ कर दो, हम आपके पैर पड़ते। सब हमारे घर का लेटर दे दो। सब सुन मेरी बात सुन। ये कोई भाजी तरकारी का दुकान नहीं है, सरकारी काम है, सरकारी काम। भाजी तरकारी का दुकान की तरह 2 नींबू उठाया फ्री में दे दिया, ऐसा नहीं है। ये पेंट रे, ले जा इसको। नहीं निकल बाहर। सब हमसे गलती हो गई। हम आपके पैर पड़ते सर। सब हमारे घर का लेटर दे दो। खींच रहे, ले जा। मर जाएगा सब, पति मर जाएगा सब। मरता तो मर जाए, मैं क्या करेगा? दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। रूपा क्या हुआ? हम तो समझते थे कि तुम औरतों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ करते हो, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत बड़े कमीने निकले। तुमसे मिलने से पहले हम एक घर की इज्जत थे, लेकिन उस
स्मार्ट ऑफिसर ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर मिला और ना रही हमारी इज्जत, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। लेकिन ये सब बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हारी घर की इज्जत तो तुम्हें छोड़कर कब की चली गई है। बहुत गंदा खेल खेला है तुमने हमारे साथ। भगवान तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। खूब काम करना पड़ता है रे बाबा। नमस्ते सर। हाँ रे बाबा। सर वो लेटर दे दीजिए ना, वो रूपा थी ना, वो आपकी क्लाइंट। हाँ हाँ जी। रूपा के घर का लेटर चाहिए तुझे? जी जी वो दे दो ना सर। और वैसे बेचारी गरीब है, और आपको जो चाहिए था वो उसने सब किया। आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया, उसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए। अपनी जान छूटे, मामला खत्म। बात तो तेरी सही है। जी सर। पर वो कहावत तूने सुनी है ना? क्या? शेर के मुंह में खून लगना। है? तू एक काम कर जी, रूपा से जाके कह, हाँ। फिर से एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। फिर से एक बार टेस्ट कर लूं उसकी जवानी को, उसके बाद फिर उसके घर के बारे में सोचेंगे। टेस्ट तो कर चुके हो, अब कौन सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा? दे दो ना लेटर साहब, गरीब है बेचारी, और जान पहचान के मेरी डेली बस्ती में मिलते हैं। क्या सोचेगी मेरे बारे में साहब? क्या सोचेगी? यही ना कि तू भड़वा है। भड़वा। लेटर दे दो साहब उसका। ए, अपनी औकात में रह। असिस्टेंट है, असिस्टेंट ही बन के रह। नहीं देता लेटर, क्या करेगा? ए, ये क्या कर रहा है? इस जूते से बहुत कीड़ों को कुचला है साहब। लेटर दे दो उसका। ए, पागल हो गया क्या? अरे क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? अरे पकड़ो उसको। साले मुझे भड़वा मत कर। पकड़ उसको। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया पागल हो गया। ए, रुक जा, रुक जा, रुक जा साले। अबे मैं साले तुझे धमकी लेके आता, साले तुझे पैसे दिलवाए, साले मोहल्ले वाले तेरी हाथ जोड़ते हैं, तू साले उनकी औरतों की इज्जत लूटता है, और साले क्या कर रहा है तू? मकान के नाम पे बेवकूफ बनाता है लोगों को। अरे रुक जा हरामी। अरे रुक जा, पागल हो गया क्या तू? साले मेरी अरे कितने बार कर लेटर दे दे उसका। रूपा, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ, तुम्हारे घर का लेटर। लो। एक बात बतानी थी तुम्हें। मेरे घर की इज्जत मेरी वजह से नहीं गई थी। मेरी वाइफ लूज कैरेक्टर थी। शादी के 3 दिन बाद वो अपने यार के साथ भाग गई थी। वो 2 महीने बाद वो लौटी, वो भी फटे हाल। माफी मांगी उसने, मैंने तब भी माफ कर दिया। क्या करता, अपना लिया उसे। 7 फेरे जो लिए थे उसके साथ। लेकिन उस बदचलन लूज कैरेक्टर लड़की ने 7 दिन की भी शर्म नहीं रखी। 1 सप्ताह के बाद मैंने उसको पड़ोस के एक लड़के के साथ मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। और बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब उसने मेरे खिलाफ मुकदमा किया कि मैं उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता हूं। मेरी सारी जमा पूंजी मुकदमे में चली गई। रूपा, जिसकी जिंदगी में फूल होते हैं वो फूल बांटता है। हमारी जिंदगी में कांटे हैं तो मैं क्या करता, मैंने कांटे बांटे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये छिछोरा कमीना नहीं है। कमीना नहीं हो सकता मैं, रूपा याद रखना। थैंक यू। एडी, याद रखना,
तुम्हारी ताजमहल बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा देगी और अवार्ड्स की तो बहुत सारी बरसात होगी। मार्क माय वर्ड। थैंक यू सर। All the best. All the best to you. एंड विद ऑल योर ब्लेसिंग्स सर, ये फिल्म जो है आपकी सारी फिल्मों से बड़ी हिट होगी। जी हाँ सर। और सर आपको याद है आपकी फिल्म में जो जूनियर आर्टिस्ट थी नैना? नैना? वो जूनियर आर्टिस्ट? यस सर, जिसको आपने धक्के मार के बाहर निकाला था। सर वो जो है इस फिल्म से अपना डेब्यू करेगी, हीरोइन बनेगी और मैं उसे सुपरस्टार बनाऊंगा। नैना इस फिल्म की हीरोइन है? जी सर। आज मेरा स्कोर 25 हो गया है नई हीरोइन के साथ काम करने का। सिल्वर जुबली मैन। हे विक्रम! हे सुबी! अरे नई फिल्म ताजमहल के लिए मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अभी भी तुम्हारा नई हीरोइन के साथ का स्कोर 25 नहीं 24 ही है। नहीं नहीं 25 है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे इस हीरोइन के साथ तो तुम पहले ऑलरेडी काम कर चुके हो। आई डोंट थिंक सो। अरे हम दोनों साथ में शूट कर रहे थे तब एक लड़की मुंह से कपड़ा उठाने के लिए मना कर रही थी। ये वही जूनियर आर्टिस्ट नैना है। ये नैना वही लड़की है? हाँ विक्रम, हाँ। मैंने कहा नहीं। लेकिन सर शायद आप जानते नहीं, नैना जो है उसने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है। शी इज अ गुड आर्टिस्ट। तो मैं क्या कोई स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ जो किसी भी जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने को तैयार हो जाऊं? सर शी इज नो मोर अ जूनियर आर्टिस्ट। और प्लीज मत भूलिए पहले आप ही स्ट्रगलर थे। तू मुझे स्ट्रगलर बोल रहा है? यू आर कॉलिंग मी अ स्ट्रगलर? सुन, तेरे को डायरेक्टर बनना है ना? हाँ, कि जिंदगी भर असिस्टेंटगिरी करनी है? एक बात ध्यान से सुन ले, ये इंडस्ट्री हीरो को सलाम करती है, हीरो को, तेरे जैसे चिल्लर को नहीं, समझे? और अगर मैं उसके साथ काम करने को तैयार हो जाऊं तो इंडस्ट्री वाले क्या कहेंगे कि विकी किसी भी एरिक गैरी जूनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने को तैयार हो जाता है। इट्स अ शेम मैन। और अगर तू ये चाहता है कि मैं ये फिल्म करूं तो उसको चेंज कर, वरना मैं चेंज कर लेता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड नैना यार। अब वो विक्रम तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता तो क्या मैं उसको खींच के लेकर आऊंगा? तुम इस फिल्म में रहोगी तो फिल्म ही बंद पड़ जाएगी। एटलीस्ट मेरा करियर तो बन जाने दो यार। तुम्हें अपने करियर की पड़ी है, तुम मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे। एडी, मैंने तुम्हारी वजह से उस खन्ना के साथ अपनी इज्जत पर दाग लगा लिया। क्या दाग वाग? क्या तुमने ऐसा पहली बार किया है क्या? नहीं ना, वर्जन थी तुम। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी मर्जी थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे साथ। और अगर मुझे डायरेक्टर बनना है ना, ये सब मुझे करना होता तो मैं भी कर लेता। यही हमारी इंडस्ट्री है और जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है। चला। किस्मत नहीं एडी, वो तुम्हारी किस्मत नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार था। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और ये मत भूलो एडी कि ये फिल्म तुम्हें मेरी वजह से मिली है, मेरी वजह से। घंटा तुम्हारी वजह से मिली है। ये फिल्म मुझे मेरे कन्विक्शन, मेरे पैशन और मेरे मोहब्बत, मेरे करियर की वजह से मिली है। और जहां तक रहे मौके मिलने की बात, तो मैं लड़का हूं, जिंदगी मुझे सिर्फ एक मौका देगी। तुम लड़की हो, तुम्हें तो चलते फिरते यहाँ वहां मौके मिल ही जाएंगे। जिंदगी 50-50 होती है मैडम, कभी हार तो कभी जीत होती है। आज अगर मेरी जीत है, हो सकता है कल फिर तुम्हारी बारी हो। चलो फिर शायद मिलेंगे। रूपा ने मेरे प्यार को गाली दी है, मेरा भरोसा तोड़ा उसने। तू भी ना एक नंबर का चूतिया है, चूतिया। मेरे साथ भी तो सोया था ना तू, तो क्या रूपा के प्यार के साथ धोखा नहीं था? हाँ, ये बात तू भी अच्छी तरीके से जानती है। वो सब हालात से मजबूर होकर हमने किया था, लेकिन रूपा तो जानबूझ के सोई ना। हाँ? बिरजू, रूपा ने जो कुछ किया उसने भी तो हालात की मजबूरी की वजह से किया। बेशक उसने जानबूझ के ये सब किया, मगर किया किसके लिए? तेरे लिए। बेशक वो किसी दूसरे मर्द के साथ सोई, मगर किसके लिए? तेरे सपनों को सच करने के लिए। यही प्रॉब्लम है हम लोगों की। हम गलती करें तो माफी मांग लेते हैं, कोई दूसरा गलती करे तो इंसाफ मांगते हैं। साली जिंदगी है ही 50-50। किसी की काली जिंदगी में उम्मीद की सफेदी, तो किसी की सफेद जिंदगी में समझौते का काला दाग।
तेरा क्या है? तू तो ऐसे ही बोलेगी ना? मैं ऐसा बोलूंगी। और क्या? तेरा क्या है? क्यों? क्योंकि मैं धंधा करने वाली हूँ इसलिए। ए बिरजू, मेरी बात गौर से सुन तू। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो इस धंधे में अय्याशी के लिए आती हैं, समझा? पता है मुझे, जिंदगी जरूरतों के हिसाब से गुजारनी चाहिए, ना कि ख्वाहिशों के हिसाब से। क्योंकि जरूरतें साला फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, मगर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। जो लड़की रोज सुहाग रात मनाती है, वो कभी अपने सुहाग के साथ नजरें नहीं मिला सकती, क्योंकि जो लड़की अपना जिस्म बेचती है, उसके साथ उसका ज़मीर भी बिक जाता है। मैंने अपना जिस्म जरूर बेचा है, मगर मजबूरी के लिए, अय्याशी के लिए नहीं, मस्ती के लिए नहीं। इसलिए जानती हूं मैं कि मजबूरी क्या होती है। रूपा ने अपनी जिंदगी को दागदार जरूर किया है ताकि तेरी खुशियों को नजर ना लगे। और हाँ, जिस काम से कुछ अच्छा हो ना, वो काम कभी गलत नहीं हो सकता। सच कहती है तू। मुझे घर वापस जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं। अब तू जा, सुबह जल्दी आ जाना। सुबह? सुबह या शाम को? सुबह। स्टेशन छोड़ने जाना है तुझे मुझे। दिल्ली जा रही हूं मैं, हमेशा के लिए। दिल्ली जाके क्या करेगी तू? कुछ तो करूंगी। माँ वाला धंधा करके देख लिया ना, कुछ नहीं मिला। अब बाप वाला धंधा करके देखूंगी। भगवान की फोटो बेचूंगी। शायद इसी तरह मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो। जा ना। तू कहती तो जाता है मैं। जाता है मैं। अरे क्या कर रही हो? अरे पागल हो गई हो क्या? छोड़ दीजिए हमें, मर जाने दीजिए हमें, हमें मर जाने दीजिए। अरे हम नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बगैर रूपा। हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें मर जाने दीजिए। अरे पागल, जो तूने किया है वो सब हमारे लिए ही किया है। हम ही पागल थे, हम ही गलत थे जो तेरे जैसे हीरा को कहाँ समझ बैठे। तेरे त्याग को पाप समझा है हमने। हम तेरे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? अरे हमने बहुत जुल्म किए तुम पर। आप मत। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि लोगन की इच्छा पूरी करने के लिए तारे को खुद ही टूटना पड़ता है। टूट गया हमारा तारा। क्यों उन्होंने पाप तो हमने किया है? अरे तू हमारा तारा है, तू हमारा वो ही तारा है। माफ कर दो रूपा। भगवान कसम तुम पे कभी हाथ नहीं उठाएंगे। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, बहुत प्यार करते हैं। अरे नहीं जी पाएंगे तुमसे अलग रह के। हमें माफ कर दो। अरे हम एक पल नहीं जी पाए तुम्हारे बगैर। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे जिएंगे? हमें माफ कर दो रूपा।